Assalamu alaikum, madam. First of all, I welcome to all of you with an Islamic greeting. Assalamu alaikum. Madam, I am Atif Asaf Khan, working as Senior Product Manager, Sami Pharmaceutical. First of all, let's start the scientific sessions with the recitation of Holy Quran. And for that, I would like to invite Mr. Ashfaq Ahmed for the recitation of holy verses. So, Mr. Ashfaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah Ashfaq. And now I would like to brief introductions of our renowned and prestigious speakers, Dr. Bushra Jamil, President MMIDSP and Infectious Disease Consultant at Aachen University. Our second speaker, Assistant Professor Dr. Noshin Nasir, Infectious Disease Consultant. Jazakallah Ashfaq for your recitation of Holy Quran. And now let me introduce of our renowned and prestigious speakers, Dr. Bushra Jamil, President MMIDSP and Infectious Disease Consultant AKUH Karachi. And our second speaker, Assistant Professor Dr. Noshin Nasir, Infectious Disease Consultant AKUH. And Ms. Moti Khan, Assistant Manager Dietitian AKUH. First, I would like to invite Professor Dr. Bushra Jamil to present her presentation on the topic emergence of extensive resistant enteric fever in Pakistan. So Madam Bushra, please. Okay, thank you for the introduction. We have prepared a few questions for the audience, and it would be nice if we can share it with them. So, host is disabled. Can you please enable screen sharing? Okay, madam. Can you see the screen? एक सेकंड. अच्छा यहाँ से होता है, ठीक है. Okay. Can you see the screen now? Yes. सही. So ये दिखाने का मकसद ये है कि I would like the participants to quickly go through these questions. क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वो डॉक्यूमेंट आया हुआ है और बाकी ने जो है यहाँ से देख सकते हैं. So I can read out the questions for you or just go through it quickly. I'll give you 5 minutes to read the questions and just formulate answers in your mind. Come up with an answer which you think is most appropriate. So 5 minutes आपको देते हैं. Just go through the questions. ठीक है, we'll move forward. नाम क्या था ड्राइवर का? ठीक है जी, देख लिए क्वेश्चंस आप लोगों ने.
Yes. ओके, सो अब हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे. जस्ट चेक प्रेजेंटेशन. नहीं जी, मैंने वो स्टॉप शेयरिंग की है. Sahi. So, in the midst of COVID pandemic, we should not forget about other problems. हाँ. और हमारे लिए जो important problems हैं, इनके अंदर डेंगी is still a major issue. और हमने ये भी देखा है अपने experience में कि COVID के साथ लोगों को डेंगी भी होता है जो हमारे पास इन patients रहे हैं. And the other important problem has been typhoid, and this has been so for years. क्योंकि हमारे पास जब डेंगू की भी outbreaks हुई हैं तो लोग ऐसे patients भी आते थे जिनको साथ में टाइफॉइड भी हुआ होता था. So co-infections को भी जहन में रखना है और जो common prevalent problems हैं उनको भी नहीं भूलना है. So आज का topic is very very important because typhoid is still a major problem for us, and it is still a challenge to diagnose and treat typhoid appropriately. स्क्रीन शेयरिंग रुक गई. स्लाइड्स. हाँ कर लिया. So the objectives of today's presentation are to discuss epidemiology of typhoid in Pakistan, drug resistance in Salmonella typhi and factors which have led to emergence of resistance, public health and preventive measures, and approach to a patient with fever in the current context in Pakistan. Dr. Nosheen Nasir is going to talk about diagnosis and treatment of typhoid. So मैं clinical features और diagnosis वगैरह पे ज़्यादा focus नहीं करूँगी. We good. सही है. So Salmonella typhi has been with us for thousands of years, probably 50,000 years से Salmonella typhi है दुनिया में और इंसानों के साथ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो Salmonella typhi के बारे में याद रखने की वो ये कि it infects selectively humans. टाइफी जो है वो जानवरों को इन्फेक्ट नहीं करता. तो humans are the only natural reservoir and humans are the only natural hosts of Salmonella typhi. तो इन्फेक्शन इंसानों में ही होता है. और 1872 में आर्टिकल्स छपते थे Salmonella typhi के बारे में कि टाइफाइड आउटब्रेक्स हो रही हैं, and they were linked to contamination of drinking water with sewage. And these reports were published both in Lancet and BMJ way back in 1872. फिर ये realize हुआ कि it's not just ingestion of contaminated water. There may be carriers of typhoid, and one asymptomatic or healthy carrier was
मैरी मेलोन, जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई थी अपनी टाइफॉइड स्प्रेडिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, बिकॉज शी वॉज अ कुक. She was responsible for infecting more than 100 people, and of whom 5 and even more died because of typhoid. क्योंकि उस ज़माने में, this was in early 20th century, में antibiotics were not available. Currently, global estimates क्या हैं टाइफॉइड के? There are between 11 and 20 million cases of typhoid worldwide, and between 128,000 to 161,000 typhoid-related deaths annually. So significant mortality associated with typhoid. Low and middle income countries के अंदर बहुत common है, and 80% of the cases in the world occur in Bangladesh, China, India, Indonesia, Laos, Nepal, Vietnam, and Pakistan. Highest incidence उन जगहों पे है जहां water supplies serving a large population are fecally contaminated. So this is the commonest association you see. जहां पे गंदा पानी होगा पीने का, वहां पे typhoid endemic होगा. Incubation period variable है, can vary from 3 days up to many days or weeks, 8 to 14 days usually. 2 to 5% of infected people may become chronic carriers, and they may harbor the organism in the gallbladder. And chronic carriers are involved in spread of the disease. बहुत से mild और atypical infections होते हैं, and relapses may be common. Relapse का actual data is difficult to find because you have to relate genetically कि जो organism पिछली episode में हुआ था वही अब है, और ये this is not a new strain which a person may have acquired. Untreated HIV अगर किसी को हो तो severe disease होने के chances ज़्यादा हैं. इसी तरह immunocompromised, significant immunosuppression के साथ भी severe disease होता है. 10% of untreated cases can excrete Salmonella typhi for up to 3 months, and between 2 to 5% of all cases become chronic carriers, जैसे हमने पहले बात की थी. So untreated cases जो हैं वो भी significant period of time के लिए feces में Salmonella excrete करते रहते हैं, and they continue to contaminate the environment. फिर एक सवाल ज़हन में आता है कि हमेशा एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होता है टाइफॉइड या कभी खुद भी ठीक हो जाता है? Without treatment, case fatality is usually around 10%. ठीक है, sometimes up to 30%, approximately 13% is the usual figure, but 10% का figure ज़्यादातर जगहों पे quote होता है. और अगर ट्रीटमेंट सही दी जाए तो mortality drops to 1 to 4%. बाकी तमाम केसेस जो हैं वो खुद ही ठीक हो जाते हैं. पाकिस्तान में it is endemic in different parts of the country. उसके अलावा आउटब्रेक्स की शक्ल में भी सामने आता रहता है. And the susceptible age group is between 3 to 19 years. क्योंकि डिजीज कॉमन है तो क्लिनिशियंस क्या करते हैं, जब भी कोई पेशेंट फीवर के साथ आता है, दे सस्पेक्ट टाइफॉइड. सो एनी फीवर विच इज लॉन्गर देन 3 days in duration, टाइफॉइड शुड बी कंसिडर्ड इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अच्छा, मसला उस वक्त आता है फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन वी हैव सर्जेस ऑफ इन्फेक्शंस लाइक डेंगू, चिकनगुनिया का भी आउटब्रेक जो हुआ था 2016 में, उसके बाद तो केसेस ड्विंडल ऑफ हो गए, लेकिन फिर भी पॉकेट्स में कहीं कहीं स्पोरेडिक केसेस आ सकते हैं. मलेरिया भी कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मलेरिया को टाइफॉइड से डिफरेंशिएट करना, एंड देन कीपिंग इन माइंड कि बोथ कैन कोएग्जिस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है. हेपेटाइटिस, acute hepatitis can present in a very similar way as typhoid. Influenza is another important differential, और अब COVID-19. तो ये तमाम वो बीमारियां हैं which present as fever, and they can present as prolonged high grade fever. तो इनको टाइफॉइड से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. And then, as I mentioned previously, more than one infection can coexist in a patient in an endemic setting. So, पाकिस्तान में ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो इमर्ज की है, काफ़ी सालों से इमर्ज कर ही रही है. सो दिस इज़ जस्ट अ फ्लो डायग्राम शोइंग कि एंटीबायोटिक्स कब डिस्कवर होते गए, इंट्रोड्यूस होते गए, और कब कब उनसे रेजिस्टेंस आता गया. सो क्लोरामफेनिकोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948, and this made a big impact on treatment and outcomes of typhoid, क्योंकि Salmonella was susceptible to chloramphenicol. फिर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हुआ क्लोरामफेनिकोल से, and then came ampicillin in 1964. It was effective against typhoid.
और उसके थोड़े साल के बाद सेप्ट्रॉन या कोट्रामोक्साजोल. So these three drugs were considered first line agents against Salmonella typhi. फिर mid 70s से 80s onwards इन तीनों ड्रग्स से रेजिस्टेंस डेवलप हुई, एंड ड्यूरिंग 1990s we had around 30% resistance to first line agents, but इस टाइम पॉइंट पे फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गई एंड ciprofloxacin became the drug of choice. So 1990s में इस वजह से बचत हो गई कि फर्स्ट लाइन से तो रेजिस्टेंस हो गई, बट फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड देन सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफिक्सीम बिकेम अवेलेबल. सो 1990s में ये ड्रग्स इस्तेमाल होती रही, फर्स्ट लाइन को सबने छोड़ दिया. बट इन 2015 more than 90% of South Asian strains became resistant to fluoroquinolones. और इसी टाइम पॉइंट पे पाकिस्तान में भी significant resistance develop हो गया to ciprofloxacin. और इस टाइम पे people switched from fluoroquinolones to ceftriaxone as the agent of choice. And then came 2016 November when ceftriaxone resistance was recognized as a major public health issue. Close to end of 2016. और अब हमारे पास situation ये है कि all strains which are resistant to ceftriaxone are labeled as XDR typhoid cases, और उनके लिए मसला ये होता है कि you have very limited treatment options, जो डॉक्टर नौशीन डिस्कस करेंगी आपके साथ. So why is drug resistance important for clinicians? इसमें सवाल ये आता है कि is the organism more lethal now? ज़्यादा नुकसान कर रहा है क्योंकि resistant genes acquire कर लिए उसने. Manifestations क्या मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा serious हैं कि अगर XDR salmonella acquire कर लिया तो complications बहुत जल्दी develop हो जाती हैं, बहुत serious हो जाते हैं और outcomes ख़राब होते हैं. So पहले देख लेते हैं कि resistance develop क्यों हुई. सैल्मोनेला टाइफी का एक स्ट्रेन है H58 कहते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है दुनिया में, और इसी स्ट्रेन की खासियत होती है कि ये स्प्रेड होता है. और इस स्ट्रेन ने एक्चुअली रेजिस्टेंट जीन्स एक्वायर की हैं, कई सालों से करता आ रहा है. और रिसेंटली ई कोलाई एक और किस्म का जरासीम होता है, उससे इसने एक प्लाज्मिड एक्वायर कर लिया है जिसके अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंस के जीन्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस के जीन्स हैं और सेफ्ट्राइक्सोन से रेजिस्टेंस के भी जीन्स हैं. और ये फैलता उसी तरह है क्योंकि फीकल फ्लोरा का हिस्सा है, इकोलाई फीसिस में होता है, वहां से सैल्मोनेला में जीन ट्रांसफर हुआ है, और जहां भी फीकली कंटामिनेटेड पानी होगा वहां ये जरासीम फैलेगा. इस तरीके से ये पाकिस्तान में फैला है और बहुत एक्सटेंसिवली फैला है. सो XDR Salmonella typhi has emerged as a deadly disease, not because the disease is severe, but because it is absolutely essential to diagnose it correctly so that the appropriate antibiotics are started at the right time. और पाकिस्तान में बहुत cases हुए हैं over the last 2 years. ये मैं आपको recent antibiogram दिखा रही हूँ last year का, January to December 2019 में. अगर आप Salmonella typhi के strains देखें, सिर्फ 15% are susceptible to ampicillin, to chloramphenicol and to Septron. ठीक है, और only 26% are susceptible to cefixime and ceftriaxone. जिससे susceptible है वो है एस्ट्रियोनेम, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस वक्त, या कार्बापेनेम्स, इमिपेनेम एंड मिरोपेनेम, 100% susceptibility. एजिथ्रो की इसमें रिपोर्टेड नहीं है, चेक नहीं. 99.9%. ओके, सो नियरली 100% स्ट्रेन्स, बहुत कम सी रेजिस्टेंस है टू एजिथ्रोमाइसिन, बट कंपेरेबल है दोनों. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स दीज टू द एंटीबायोटिक्स ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग XDR सैल्मोनेला, जो कि इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टर नौशीन बात करेंगे फिर. So outcome जो है XDR salmonella का, it is affected by delay in initiation of appropriate treatment, और कोई रीज़न नहीं है. जरासीम ज़्यादा virulent या ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं है. हमारा मसला क्या रहा है, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट दोनों ही सब ऑप्टिमल रही हैं. ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से ऐसे ही रहा है. हम रिलाई करते हैं ऑन क्लिनिकल फीचर्स क्योंकि ज़्यादातर कॉस्ट के इश्यूज आ जाते हैं, या नॉन कल्चर बेस्ड डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ पे जो कि रिलायबल ही नहीं है, जैसे टाइफाइड या विडॉल हैं, जो कि जिनकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी कम है
और वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ टाइफॉइड नहीं होता वहाँ आप लेबल कर देते हैं कि टाइफॉइड है, जहाँ टाइफॉइड होता है वहाँ ये टेस्ट नेगेटिव होते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। देन बहुत से लोगों को ससेप्टेबिलिटी डेटा की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। जो डेटा मैंने आपको दिखाया, ये वाला डेटा वाइडली एक्सेसिबल नहीं है। सो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम इसको डिसेमिनेट करें ताकि लोगों को कम से कम अपने से उन रेलेवेंट ऑर्गेनिज्म की ससेप्टेबिलिटी पता हो जिनको वो डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में ट्रीट करते हैं। देन एक प्रॉब्लम जो है वो कि रिकमेंडेड डोजेस से कम डोज में ट्रीट करना किसी भी इन्फेक्शन को, उससे न सिर्फ आउटकम्स अफेक्ट होते हैं बल्कि रेजिस्टेंस डेवलप करने को प्रमोट करते हैं आप। और हमने ये देखा है कि पूरा 90s में और इन द आफ्टर 2000 फ्लूरोक्विनोलोन्स भी जब यूज किए हैं तो उनको कम डोज में यूज किया है, सब ऑप्टिमल डोजेज। इसी तरह सेफ्ट्राइक्सोन सेफिक्सिम की कम डोजेज यूज की गई हैं जिसकी वजह से उनकी एफिकेसी भी कम रही है और रेजिस्टेंस डेवलपमेंट प्रोमोट हुई है। सो इट्स अ सब एक्यूट कंडीशन। सो इसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स को ये फ्रीडम मिल जाती है कि बहुत रैम्पेंट रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन नहीं होती और सेप्टिक शॉक और इस किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं होती, फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो आपके पास टाइम होता है ऑफ एग्जामिनिंग द पेशेंट, डूइंग द वर्कअप और सोचने का, फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड प्लान। तो आपके पास वर्कअप डिले भी हो जाए तब भी इतना नुकसान नहीं होता और आप सही ट्रीटमेंट जो है किसी टाइम पे भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को आउट पेशेंट बेसिस के ऊपर मैनेज किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं दे आर सिक इनफ टू बी एडमिटेड और अप्रोच टू मैनेजमेंट दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, फिर हम इस पे आ जाते हैं वापस पाकिस्तान की सिचुएशन पे। इस वक्त का डाटा ये बताता है कि सिंध और पंजाब दोनों प्रोविंसेस के अंदर बहुत हाई रिस्क है ऑफ डेवलपिंग टाइफॉइड, बल्कि केपीके के अंदर भी अब प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। कराची से इस सिचुएशन से सब लोग फेमिलियर हैं। बहुत सारे ड्रेन्स के अंदर फीकल कंटामिनेशन है और वो बिल्कुल खुले एरियाज के ऊपर ओपनली पानी उनका इफ्लुएंट जो है वो रिलीज होता रहता है और इस तरह की सिचुएशन के अंदर मिक्सिंग ऑफ सूएज विद ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इजी। हैदराबाद की जो आउटब्रेक थी 2016 में, उसके अंदर जो अफेक्टेड एज ग्रुप था, इसमें अगर आप देखें तो चिल्ड्रन यंगर देन 15 years of age were the most affected age group। अच्छा, ये कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं है। कोई भी नया इन्फेक्शन जब किसी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल पॉपुलेशन, नया इन्फेक्शन है बिल्कुल तो पूरी पॉपुलेशन एट रिस्क होती है, लेकिन अगर वो एंडेमिक हो पॉपुलेशन में तो यंगर एज ग्रुप्स आर मोर ससेप्टेबल, क्योंकि बाय द टाइम एडल्टहुड रीच होती है तो वो किसी ना किसी टाइम पॉइंट पे एक्सपोज हो चुके होते हैं। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर डेंगी। सो जो भी एंडेमिक कंडीशंस हैं विच सर्च फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप उसमें देखेंगे कि यंगर एज ग्रुप इज प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड, क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप में किसी लेवल तक की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ री-चैलेंज, बार बार एक्सपोजर के बाद। अच्छा, ये एक पिक्चर है जो मैंने डॉक्टर फरा कमर की पेपर से ली है, जिसके अंदर ये हैदराबाद के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टडी की गई थी क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले XDR सैल्मोनेला आइडेंटिफाई हुआ था। और ये बेसिकली यहाँ पे भी यही पता चला था कि अटैक रेट was 7 to 15 per 1000 residents और मेन रीजन was मिक्सिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद sewage। सो करंटली अगर देखें ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स तो इनिशियली तो हैदराबाद में 2017 में सबसे ज़्यादा केसेस थे, फॉलोड बाय कराची एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स कराची में सबसे ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं XDR टाइफॉइड के। सो कराची हैज़ टेकन द लीड। बाकी एरियाज़ में कराची के मुकाबले में कम केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। उसके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, पॉपुलेशन भी हो सकती है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है, देन कि कितना एफर्ट आपने किया डिफरेंट एरियाज में जाके पेशेंट स्टडी करने का, ये भी हो सकता है, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम कराची। So what is the cost of XDR Salmonella typhi in terms of health and economics? हमने हेल्थ की तो बात की थी। तो अनट्रीटेड टाइफॉइड की तरह ही होगा ये, क्योंकि XDR का इन्फेक्शन अगर आपने इसकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स उसमें इंस्टीट्यूट नहीं की, ट्रीटिंग XDR Salmonella with ceftriaxone would be like not treating typhoid at all.
और इसमें फिर लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी हो सकती है रेंजिंग फ्रॉम गट परफोरेशन, मेटास्टैटिक इन्फेक्शंस, एब्सेसिस बन सकते हैं जगह जगह, न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं इन मोर देन 50% ऑफ केसेस। केस फेटेलिटी की हमने बात कर ली, 10% के अराउंड रहती है। ट्रीटेड अगर हो इन्फेक्शन तो केस फेटेलिटी बहुत कम हो जाती है, लेस देन 1% हो जाती है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं टाइफॉइड की, जिसके अंदर एक और ऐड हो गया है, लेकिन वो हम गाइडलाइंस आपसे शेयर कर लेंगे, उसके अंदर मेंशन्ड है। तो यू कैन क्लासिफाई टाइफॉइड फीवर एज नॉन रेजिस्टेंट, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग से ससेप्टेबल है, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, ट्रामोक्साजोल, उसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन, सेफिक्सिन वगैरह। देन एमडीआर टाइफॉइड जो टर्म है वो उसके उन स्ट्रेन्स के लिए यूज होती है विच आर रेजिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रॉन। एंड देन एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट या एक्सडीआर टाइफॉइड, जो कि सेफ्ट्राइक्सोन से भी रेजिस्टेंट हो। कॉस्ट अगर देख लें तो is a cheaper antibiotic as compared to meropenem and imipenem. So एक दिन की cost of treatment is logarithmically high if one is infected with XDR typhoid. तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे बचा जाए. Treatment should not be our objective. Our objective should be prevention. लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है उसको कैसे डील करना है वो डॉक्टर नौशीन बताएंगे आपको. सो एसेंशियल पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या होंगे, इसके अंदर थोड़ी सी एग्जांपल उसकी देख लेते हैं कि हैदराबाद आउटब्रेक के बाद क्या हुआ था. It is indicated. It has long-lasting immunity and it can be given to children who are around 6 months of age. इससे पहले वाली वैक्सीन जो थी वो 2 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दी जा सकती थी. और ये जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, दिस इज द प्रिफर्ड वैक्सीन एट द मोमेंट. किसी भी आउटब्रेक सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए. इट इज इंडिकेटेड. ये उन ट्रैवलर्स के लिए भी इंडिकेटेड है जो टाइफॉइड एंडेमिक एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं. यानी कि जो लोग बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान आते हैं तो उनके लिए इंडिकेट टू कंट्रोल द डिजीज. फिर एक सवाल आता है कि वैक्सीन जो है डज इट प्रिवेंट इमर्जेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस? नॉट डायरेक्टली, बट इट डिक्रीजेस द नीड फॉर एंटीबायोटिक्स. जब डिजीज ही नहीं होगा तो एंटीबायोटिक्स कम इस्तेमाल होंगे और इस तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट और उसका स्प्रेड को प्रिवेंट किया जा सकता है. सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वैक्सीन के ऊपर फोकस करके उसको स्प्रेड करें. अब इसको मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये मसला था 2 साल पुराना. जिस टाइम पे वैक्सीनेशन कैंपेन्स शुरू हुई थी उस वक्त लोगों ने बहुत एतराज़ किया था कि हमें फ्री वैक्सीन क्यों मिल रही है, अर्जेंसी क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है. स्पेशली क्योंकि लोगों को पता था कि वैक्सीन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और जिस तरह दूसरी वैक्सीन की क्या की साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, वही है जो दूसरी वैक्सीन के होते हैं. पेन होता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, सेल्फ लिमिटिंग फीवर होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थी इनिशियली, लेकिन अब मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया एंड इट्स ओके. सो मैनेजमेंट का ब्रीफली बता देती हूँ. घर पे मैनेज होते हैं, आउट पेशेंट में ज़्यादातर मैनेज होते हैं. डिटेल्स डॉक्टर नौशीन बताएंगी. एक चीज जो याद रखने की है कि देयर इज एन एब्सोल्यूट नीड टू यूज कल्चर एंड सेंसिटिविटी बेस्ड मेथड्स टू गाइड चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बगैर कल्चर के आप डायग्नोज ही नहीं कर सकते और डायग्नोज नहीं कर सकते तो अप्रोप्रिएटली ट्रीट नहीं कर सकते कि इफ यू आर डीलिंग विद एक्सडीआर टाइफॉइड. सपोर्टिव मेजर्स वही हैं जो किसी भी बुखार की कैफियत में होते हैं, फ्लूइड्स, रिहाइड्रेशन, एंटीपायरेटिक्स वगैरह वगैरह, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन और फिर कॉम्प्लिकेशंस की मैनेजमेंट. अच्छा, यहाँ पे एक चीज
और रिमाइंड आप लोगों को करा दूं कि हमने इन रिस्पांस टू दिस इमरजेंस ऑफ XDR सैल्मोनेला मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइंस लॉन्च की थी. दे वर लॉन्च 2 years ago और अब हमने रिवाइज्ड वर्जन उसका रिलीज किया है. और ये काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस हैं. इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपको टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेगी. एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी रेलेवेंट टू व्हाट द सिचुएशन इज़ इन पाकिस्तान. जो एक पॉइंट बहुत रीटरेट किया गया बार बार इस गाइडलाइन में वो ये कि पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे विडॉल और टाइफिडॉट जो हैं इनको डायग्नोसिस के लिए नहीं इस्तेमाल करना, बिकॉज दे गिव फॉल्स रिजल्ट्स ड्यू टू cross reactivity with other bacteria or previous infection with salmonella. इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करना है दूसरे इन्फेक्शंस के साथ, एम्पेरिक ट्रीटमेंट कब शुरू करना है, किन एजेंट से करना है, कैसे करना है, एंटीबायोटिक्स. डॉक्टर नौशीन आपको इसकी डिटेल्स बताएंगी फर्दर. Pakistan drug resistance is evolving, making firm diagnosis essential for appropriate treatment. Control has to be multifaceted. There is an important role of vaccination. And approach to patients and management decisions should be based on relevant local guidelines. किताब अभी तक ये कह रही है कि ciprofloxacin use करें. हमारे 99% of strains are resistant to ciprofloxacin. So locally relevant guidelines, जिसमें MMIDSP की guideline is a big resource for all the clinicians and it is current and it's updated. उसको रेफर कीजिए और अपने पेशेंट्स की सही तशखीस और उनका इलाज कीजिए. Now is the time for global action to prevent a gathering storm from becoming a perfect storm. Because if we don't address this issue of XDR salmonella now, it will become a perfect storm, an untreatable condition, and this would be an enormous public health crisis. Thank you very much. Mr. Atif, kindly introduce another speaker. Dr. Saab, Dr. Assistant Professor, Dr. I would like to invite Dr. Naushin Nasir to present her topic. Assalamu alaikum, madam. I'm Dr. Naushin Nasir. I'm an assistant professor, like I was introduced. Thank you very much for that introduction. I would now present my part of the presentation is on diagnosis and treatment of XDR typhoid. Please let me know if you are able to share, see my screen. No, madam. No, madam. Yes. So, Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to be giving a brief overview on approach to a patient with typhoid fever, and we'll go over the clinical manifestations and the complications. We'll talk a little bit about how to diagnose typhoid, and then we will go over treatment of XDR typhoid fever. Prevention has already been discussed by Dr. Bushra in great detail, so I won't be discussing that in great detail. So let's begin with the case scenario. We have a 26-year-old gentleman who's a resident of Hyderabad, Sindh, who presents with a history of high-grade fever and abdominal pain since 7 days to the ER on the 3rd of June 2020. He had been to a local GP and was taking Cefixime 400 mg once daily since 3 days, but his fever and abdominal pain were worsening. On examination, his vitals were a heart rate of 120 beats per minute, blood pressure of 90 by 60, temperature of 39 degrees Celsius, and a respiratory rate of 18. But on abdominal examination, there was guarding and there was periumbilical tenderness of
superficial palpation. Provisional diagnosis, what differentials should be considered, what is the best way to diagnose this patient, and what is the treatment of choice. And whenever we encounter a patient, we always come across these questions in our mind. And then we decide our strategy. How are we going to come up with the diagnosis? So initial approach जो होती है ना, वो एक puzzle की तरह होती है. जैसे different pieces of puzzle होते हैं, उस तरह से आपकी approach की भी strategy एक होती है. So first you look at the time. So अगर हम इस patient की example लें, तो इसका time duration of symptoms जो था वो 7 days था. We look at the month और किस season में patient present हो रहा है, क्योंकि काफी सारी बीमारियां जो है वो certain seasons में ज्यादा prominent हो जाती हैं. So for example, अगर monsoon के वो हैं months हैं, तो you think about malaria. Winter months हैं, you think about influenza. So those are important things to consider as clues जब आप patient की history ले रहे होते हैं. Then you look at the person कि उसकी age क्या है, उसकी comorbids क्या हैं, वो किस एरिया से आया है, उसने कहीं से ट्रैवल किया है. तो ये चीजें आपकी इनिशियल अप्रोच को और आपकी आगे की स्ट्रेटजी को गाइड करती हैं. देन यू लुक एट द अदर सिम्टम्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डिस्यूरिया हो रहा है, थिंक अबाउट यूटीआई. इफ समबडी इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, तो यू हैव सर्टेन अदर डिफरेंशियल इन माइंड, जिसमें बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेसेस हैं और इन्फेक्शंस हैं जो आपके प्रोविजनल डायग्नोसिस को हेल्प करते हैं. And then you go for the examination, and that adds to your approach in terms of refining your approach. और वो फिर आप उससे अपने आगे की investigations को decide करते हैं. So अगर हम टाइफॉइड की clinical features पे नजर डालें, तो the first week is characterized by fever, which is gradually rising over days. So classically इसको step ladder pattern कहते हैं. फिर malaise, headaches, dry cough, these are all the kind of symptoms which the patient can manifest. And abdominal pain is also one very prominent symptom in such patients. Usually in the early phases, there is constipation, and later there can also be a diarrheal illness. Step ladder pattern classically इस तरह से होता है कि आपके हर दिन के हिसाब से हर दिन आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है. तो ये चीज इम्पोर्टेंट है बतानी, इसलिए कि बहुत सारे लोग आते हैं 1 महीने के बुखार के साथ, और बहुत लो ग्रेड फीवर्स होते हैं, और उनको टाइफॉइड करके ट्रीट किया जा रहा होता है महीनों. So those are important things to understand कि कहाँ पे किस चीज का सस्पेशन ज्यादा होगा. सेकेंड वीक में यूजुअली ये सारे फीचर्स आते हैं, सच एज रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, हेपेटोमेगली, रोज स्पॉट्स अपीयर होते हैं. थर्ड वीक में जब पेशेंट्स जो है वो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें डिलीरियम है, डायरिया है, और सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, तो द 2 मेन फीचर्स आर फीवर एंड हेडेक. मोर देन 90% फीवर एंड हेडेक के साथ प्रेजेंट करते हैं. चिल्स, कॉफ, मायल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, ये सब चीजें हो सकती हैं. एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कोटेड टंग होती है, हेपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली वगैरह. और ये दिस इज अ पिक्चर शोइंग रोज स्पॉट्स जो आपको एंटेरिक फीवर में नजर आते हैं. अच्छा, जब हम XDR टाइफॉइड की बात करते हैं, तो यूजुअली हमने जो अपने क्लिनिकल उसमें देखा है एक्सपीरियंस में, वो ये कि a lot of the people come with some kind of a complication, and the one that is the most life-threatening complication and should always be kept in mind whenever we talk about typhoid fever is hemorrhage and perforation. So gastrointestinal perforation is the one thing that is very, very important. पेशेंट्स की लेट प्रेजेंटेशन होती है और पेशेंट इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं. उसके अलावा देयर आर सेवरल अदर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और बहुत सारी डिफरेंट मल्टी सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस हैं. अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने अपने क्लिनिकल सिनारियो को देखते हुए एक डिफरेंशियल बनाया, और हमारा क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ फीवर इज अराउंड 7 days एंड हाई ग्रेड फीवर है, क्लूज भी हमें टाइफॉइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. तो हाउ शुड वी
What kind of investigations should be done to diagnose typhoid fever? So, पहले हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस की कि कैसे किया जा सकता है और कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं. Culture जो Salmonella typhi का है, that can be taken from many body fluids such as blood, bone marrow, urine, urine spot biopsy extracts, duodenal aspirates, and stool, and blood culture. So ये बताया कि आपको जो है पता हो कि काफी सारे किस्म के स्पेसिमेन से सैल्मोनेला टाइफी की है, मगर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ब्लड कल्चर जो है वो दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड एंड इट मस्ट बी सेंट आइडियली बिफोर स्टार्टिंग to do bone marrow aspirates का पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन है, यानी कि बहुत लंबा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है जो कि रिफ्रैक्टरी टू जिसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा और जो कि रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट है. कल्चर्स फ्रॉम स्टूल यूजुअली अर्ली डिजीज में पॉजिटिव नहीं आते. ब्लड कल्चर्स जो हैं वो रेकमेंडेड हैं एम्पिरिकल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करने से पहले, मगर जस्ट इन केस अगर आपने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स किसी ने शुरू की हुई हैं तो भी आप ब्लड कल्चर्स भेज सकते हैं. Blood culture report is available in around 7 days after sample submission in cases where there is no growth of any microorganism. If blood culture is positive, ये आपको 3 to 4 days में identification और antibiotic sensitivity testing के साथ मिल सकता है. However, it's important to note that a negative culture does not exclude typhoid. And if you have a patient whose fever is not responding, like I just mentioned, if somebody you have started on empiric treatment, it's not responding, then it warrants a repeat blood culture in 7 to 9 days of commencing treatment. वॉल्यूम क्यों नहीं पॉजिटिव आता और अक्सर लोग कहते हैं कभी पॉजिटिव नहीं आता, उसमें से एक फैक्टर ये होता है कि वॉल्यूम आपने एडिक्वेट नहीं दिया, यानी ब्लड कल्चर का जब सैंपल लिया गया तो वॉल्यूम सफिशिएंट नहीं था. At least 20 ml of blood should be obtained from an adult patient और 10 ml each aerobic and anaerobic blood culture bottle में डाला जाता है. अगर बच्चों का जो है वो डिफरेंट होता है, पीडियाट्रिक में एज के हिसाब से डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड कलेक्ट किया जाता है कल्चर के लिए. प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में अगर कोई आपको बता रहा है कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं और अगर आप उससे और डिटेल में पूछें और वो आपको कहते हैं कि भाई ये लैक्टोज नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं, तो दैट शुड बी वेरी सजेस्टिव, दैट शुड गिव यू अ क्लू to Salmonella species, and the patient should be started treatment in the lines of typhoid fever. So if we look at the different specimen percentage culture positivity very early in the course of illness, the first thing that turns positive is the blood. And then later on you see that the stool specimens can turn positive, and also to some extent with very low culture percentage of culture positivity, the urine can also be Salmonella can also be cultured from the urine. Now, important to emphasize here again, like Dr. Bushra had already mentioned, serological tests Vidal and Typhi-DOT are not recommended in the diagnosis of typhoid. And I would say that if there's one take-home point, if you take from this presentation, that would be that this thing that they are not recommended. They both have low sensitivity and specificity, and they do not provide information on antimicrobial sensitivity. So अक्सर हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो महीने महीने टाइफॉइड ट्रीट हो रहे होते हैं और यही टेस्ट बार बार रिपीट कराया जा रहा होता है, and this is all promoting and this is all exacerbating the problem of antimicrobial resistance, क्योंकि उनको सेफ्स्पैन दी जा रही होती है और वो 2-2 महीने सेफ्स्पैन खा रहे होते हैं based on these tests.
Already Dr. Bushra has mentioned what is MDR and what is XDR. Just revising it for you, infection caused by Salmonella enterica serovar typhi strains, which are resistant to the first line recommended drugs of treatment, which include chloramphenicol, ampicillin, and trimethoprim sulfamethoxazole. These are MDR. And for XDR, they are resistant to most of the antibiotics which are used to treat typhoid, which includes ampicillin, chloramphenicol, trimethoprim sulfamethoxazole, ciprofloxacin, and ceftriaxone. So when to suspect XDR typhoid fever, you can suspect it if there is an outbreak situation. You can suspect it if one of the family members has been diagnosed or recently treated for XDR typhoid. And if the patient is not responding to empiric treatment for MDR typhoid. And like Dr. Bishra showed you the antibiogram, it is now a major problem all over the country. And we have only 26% sensitivity to ceftriaxone for Salmonella typhi. So basically, our endemic strain is the resistant strain, which is sensitive to azithromycin and meropenem and imipenem. And so first line option. So the drug of choice, azithromycin, is usually given in a loading dose of 1 gram, and then it is followed by 500 mg daily for 7 days. And usually it is used for patients who have uncomplicated typhoid, who are coming into the outpatient, and they are able to tolerate oral medication. The other treatment option that is left is imipenem, meropenem, or the carbapenems, and the duration is 10 to 14 days. And it has to be continued for at least 2 days after defervescence. So even when you are deciding to switch the patient to oral therapy, the patient should have had resolution of symptoms for at least 2 days on these antibiotics, usually used for complicated typhoid, like I mentioned. If the presentation is with any of the complications such as perforation, such as impending perforation, such as abscess formation. We have seen a lot of patients with splenic abscesses coming with XDR typhoid fever. Patients who are unable to tolerate oral medication, who have significant abdominal complaints. And so those patients should initially be started on empiric treatment. मेन कैरियर जो है हमारे खाना और पानी, अगर आपका सीवेज के पानी से कंटामिनेटेड है तो मेन कैरियर्स हमारा खाना और पानी ही है. सो डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस टाइफॉइड फीवर एंड इलनेस हमें डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से एस्पेक्ट्स खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प करेंगे कि पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो और फिर डाइटरी मैनेजमेंट उसकी सक्सेसफुल हो अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो जीआई डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हम देखने में आए, जिसके अंदर डायरिया कॉमन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट्स हैं. तो खाने की चॉइसेस को इस तरह एडजस्ट किया जाए जिसमें आपकी डाइट जो है वो इजी टू डाइजेस्ट हो और बहुत ज़्यादा हैवी और रिच ना हो इन टर्म्स ऑफ कुकिंग मेथड एंड द टाइप ऑफ ऑयल एंड फैट दैट वी यूज़. सो टाइफॉइड के जो अलाउड फूड्स हैं उसकी मैनेजमेंट में ब्लैंड डाइट इज रेकमेंडेड, बिकॉज हमारे यहाँ वो खाने जो कि बहुत आसानी से हजम हो सकते हैं हमें वही रेकमेंड करने चाहिए. सो कंसिडरिंग द सिम्टम्स, मैंने सिम्टम्स की स्लाइड इसलिए शेयर की क्योंकि इन सब सिम्टम्स का कनेक्शन हमारी डाइट से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है. हेडेक है, फटीग है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट में होता है, प्रोटीन लॉसेस हो रहे होते हैं, प्लस बॉडी की अपनी जो वीकनेस है बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स एंड अटैक ऑफ दिस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है. तो हमें इसमें लैक ऑफ एपेटाइट की वजह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी मिल रहा होता है. मैंने ना डायरेक्ट वेट जुबली लॉस इंश्योरेंस को पे बात की है कंसिडर करना है कि तो एटलीस्ट पेशेंट 111111 के साथ वेट लॉस की
Excuse me, madam. Miss Moti Khan, please switch on your mic. Is it clear now? Madam. Can you hear my voice? Yes, madam. Is it clear now? Yes, madam. Your voice is clear now. Okay. इससे पहले you were unable to listen? Yes, madam. Okay. So मैं डिस्कशन ये करी थी, अगर हम सिम्टम्स के साथ चलें तो हमारे पास जो सिम्टम्स हैं उसका कनेक्शन डाइटरी मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा डीप डाउन है, क्योंकि लैक ऑफ एपेटाइट की वजह से जो अक्सर मरीजों में वेट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उनके अंदर ग़िज़ाई किल्लत की जो एक माल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो बहुत कॉमन हो जाती है, जिसकी वजह से डिले इन द ट्रीटमेंट एंड रिकवरी आप सब ने नोट भी किया होगा अपने पेशेंट्स के अंदर। सो डाइटरी रिकमेंडेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैलोरीज की कंजम्पशन पेशेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आप रिकमेंड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेट लॉस, एक बड़ा हमारा मेजर कंसर्न होता है कि पेशेंट अगर टाइफाइड के साथ हमारे पास डाइटरी मैनेजमेंट के लिए आए तो उसको फीवर भी है, जिसकी वजह से जिसम में पानी की भी कमी हो रही होगी, और वो भूख की जो एक अर्ज होती है वो भी इतनी अप टू द मार्क नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कुछ डाइट में कैलोरी, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन पेशेंट को रेकमेंड करना बहुत जरूरी है। सम ऑफ द फूड सोर्सेज अबंडेंट इन कैलोरीज, जिसके अंदर ब्रेड है, राइस है, सीरियल्स हैं, सब्जियां हैं डिफरेंट किस्म की, और फ्रूट्स के अंदर कुछ कुछ कैलोरिक डेंस फ्रूट्स होते हैं जो कि आसानी से हजम भी हो जाते हैं और पेशेंट को कैलोरीज भी अच्छी दे रहे होते हैं, जिसमें बनानास हैं, बनाना शेक्स आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। कुछ आपके पास पिक्चर में इस वक्त कॉटेज चीज है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स दे सकते हैं, अंडे हैं, ऑलिव ऑयल, हनी, न्यूट्रिशन शेक्स भी आप पेशेंट को एडवाइस ज़रूर कीजिए। यहाँ खाने में रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आपने पेशेंट को मजीद वेट लॉस की तरफ पुश कर दिया। सो आइडियली फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट डेंस होते हैं, जिससे हमें ज़्यादा कैलोरीज पेशेंट को दे सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाना अवॉइड करवाइए, और जनरली जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो कि मैंने अभी शुरू में जिक्र किया कि दलिया है, सीरियल्स हैं, राइस हैं, एग्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, स्टीम फूड है, एप्पल सॉसेस हैं, वरना आप सिंपल फ्रूट सैलड्स बना के मरीज को दे सकते हैं। आप आलू या चावल किसी भी फॉर्म में उसको, जो घर में वो नॉर्मल कुकिंग मेथड से बनाते हैं, वो ज़रूर कंज्यूम करें। इन चीज़ों को कट डाउन नहीं करना है। अ, हमारे पास डाइटरी सोर्स में जो प्रोटीन की बेस्ट सोर्स है, जो कि आसानी से हजम हो जाएगी इस कंडीशन में, वो आपकी अंडे का बेस्ट सोर्स है, जिसमें कोलिन भी मौजूद है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो अंडा ज़रूर रेकमेंड करना है। अदर देन दैट अगर हम आगे चलें तो प्रोटीन रिच फूड्स का रोल बड़ा ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त ऐसे पेशेंट की बहुत कमज़ोर होती है, तो हमें मिल्क और योगर्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज़रूर रेकमेंड करना है। आइडियली मैं पेशेंट्स को अपने हमेशा ये बताती हूँ कि आपने खुला दूध उबाल के इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे से बॉईल करके यूज़ कीजिए। घर में उसी दूध से दही जमा के यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्त प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे होते हैं, or ultimately they are supporting the immune system also during this course of period. Milk products में eggs, again dairy products के अलावा eggs are the best source of protein. कुछ टाइम तक के लिए जिन मरीजों को डायरिया के प्रॉब्लम्स हों, उसमें उनको रेड मीट का इस्तेमाल आप रिस्ट्रिक्ट करिए। रेड मीट का मतलब है मटन या बीफ वगैरह जो होता है, इसकी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, क्योंकि ज़रा देर से हजम होता है। इट हैज़ अ बिट हार्ड प्रोटीन, क्योंकि देर से डाइजेस्ट होता है। सो चिकन, फिश है, बाकी बीन्स, दालें हैं, एग्स हैं, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू बी रिकमेंडेड। हमारे यहाँ कुछ पॉपुलेशन जो है लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उनको आप दालें हैं, पनीर है, सोयाबीन है, इसका इस्तेमाल ज़रूर बताइए एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगेन कुछ कंफर्टिंग फूड्स वो होते हैं जो कि पेशेंट को अगर डायरिया है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके लूज हो रहे होते हैं बॉडी में, उसको रिप्लेनिश करते हैं। सूप्स हैं, यखनी है, ब्रॉथ है, वेजिटेबल सूप्स हैं, बहुत सारे क्लियर दाल सूप होते हैं। सो दीज आर द बेसिक क्विक फिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग लिक्विड्स। तो आप ज़रूर कंफर्टिंग फूड्स को प्रेफर कीजिए कि हर मील में पेशेंट का सूप या यखनी या थिक सूप्स का या क्लियर सूप्स का कॉन्सेप्ट जरूर इंट्रोड्यूस करवाइए। अदर देन दैट हमारे पास हाइड्रेशन बड़ी मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरिया और फीवर में इतना सारा फ्लूइड लॉस होता है पेशेंट का कि उसको इसको रिप्लेस करने के लिए फ्लूइड का बैलेंस ज़रूरी है। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे
और कहीं अगर आपको लग रहा है कि डायरिया की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हुए कोकोनट वाटर है या फ्रेश फ्रूट के घर में निकले हुए जूसेस या लस्सी या ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ज़रूर रेकमेंड कीजिए। हनी फ्लेवर्ड वाटर यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो इसका मतलब है कि लेमनेड या लेमन एंड हनी वाटर वर्क्स वेरी वेल फॉर सच पेशेंट। सो हनी के अंदर आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हनी वाटर भी पेशेंट फ्लेवर करके विद अ स्क्वीज ऑफ लेमन जरूर पूरे दिन में 1 से 2-3 ग्लास ले सकता है। आई आइडियली रेकमेंड कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 टेबल स्पून हनी डाइल्यूट हो और फिर एक पूरा लेमन उसमें वो डाल दें और उसको पूरे दिन पानी को वो ख़त्म करें, और फिर एक बॉटल पूरी उनकी 1 लीटर की इस तरह से जाए और 1 लीटर फिर वो सिंपल पानी को अपने पूरे दिन की डाइट में इंक्लूड करें। कुछ फ्रूट्स हैं जिनके हाई वाटर कंटेंट होते हैं, नेचुरली वो भी आपका पानी की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जिसमें आपका वाटरमेलन है या मेलन है, आजकल पीचेस हैं। सो कुछ ऐसे फ्रूट्स जो कि वाटर कंटेंट जिनका ज़्यादा होता है वो ज़रूर रेकमेंड कीजिए। और अगर पेशेंट को डायरिया नहीं है तब तो हम ये फ्रूट्स दे सकते हैं, और एल्स अगर डायरिया बढ़ा है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें बनाना is the best low residue fruit that can be recommended to be taken 2 to 3 times in a day. अगेन कुछ फूड्स ऐसे हैं जो अवॉइड करना है, क्योंकि अगर मोशन है, डायरिया की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फाइबर ज़्यादा लेने से डाइट में या रेशे की मिकदार ज़्यादा लेने से मरीजों का डायरिया मजीद बढ़ सकता है। जिसमें हाई फाइबर फूड्स के अंदर जैसे दलिया होता है या चोकर वाली रोटी होती है, सैलेड्स हैं, चपाती है, इसका इस्तेमाल हमें कुछ टाइम तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जिन लोगों को डायरिया की शिकायत इस कंडीशन में ज़्यादा है। कुछ गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैबेज, बंद गोभी है या फूल गोभी है या बेल पेपर्स है, कैप्सिकम वगैरह होती है, शिमला मिर्च हम जिसे कहते हैं। कुछ सब्जियों में और दालों में क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैसेस कॉज करते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड फूड एंड प्रोसेस फूड। अब हमारे जैसे डॉक्टर बुशरा ने सुबह सुबह अपनी इनिशियल प्रेजेंटेशन में लिखा, डिस्कस किया था कि जो एज रेंज टारगेटेड है वो 3 to 15 और 16 ईयर्स की एज रेंज है। तो आजकल हम खाने पीने के ट्रेंड में ये देख रहे हैं कि टॉप 3 चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमनली हर घर में यूज़ हो रही हैं। दैट इज़ पैकेट के मसाले, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस एडेड होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कीजिए। डीप फ्राइड खाने जो कि हम टेक अवे से भी ऑर्डर करके बच्चे खा लेते हैं या फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी खाते हैं, एंड यू डोंट नो द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस दैट इज बीइंग कुक्ड इन इट। एंड देन द प्रोसेस फूड। तो प्रोसेस फूड का मतलब ये कि जितना फ्रोजन फूड चेन्स हैं आपके पास, वो आपको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन इतनी साउंड नहीं है जितनी आपके नेचुरल खाने जो घर के बने हुए साफ सुथरे हाथ से बने हुए खाने की क्वालिटी में होंगे। इन्फेक्शन को जल्दी ट्रीट करना है तो प्रोसेस फूड और ऑयली खानों को और स्पाइसी खानों को स्ट्रिक्टली आपको थोड़े दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगेन घी, बटर, क्रीमी डिजर्ट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी होती हैं, मिठाइयाँ हैं एक्सेट्रा, जितनी चीज़ें हम बाहर स्ट्रीट वेंडर से लेके खाते हैं या हम बाहर जाके टेक अवे ऑर्डर करते हैं या खुद जाके खा रहे होते हैं, इन सब के अंदर बहुत बड़ा चांस है दैट पेशेंट कैन कैच द इन्फेक्शन, और अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन एग्रेवेट हो सकता है। I've mentioned here घी, बटर, creamy desserts को अवॉइड करना है, बट येस फॉर कैलोरी कंजम्पशन हम बटर 1 or 2 teaspoon इन अ डे पेशेंट को एडवाइज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द फैट, द कैलकुलेशन ऑफ द फैट कंटेंट जितना पेशेंट को आप देना चाह रहे हैं, दैट कैन बी एंटरटेन्ड आराम से। ऑन दी अदर हैंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3-3 घंटे पे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट की एनर्जी लेवल अप टू द मार्क रहे। अगेन फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट की नेचुरल कलरफुल सोर्सेज हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट की, जो हमें सब्जियों और फ्रूट से मेजरली मिल रही होती हैं, वो ज़रूर रेकमेंड कीजिए, जिसमें डिफरेंट कलरफुल सब्जियां हो सकती हैं जिसके अंदर आइसोफ्लेवॉन्स हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी को भी अल्टीमेटली बेहतर कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट डायरिया से रिकवर्ड है तो आप आराम से उनको हर किस्म की फ्रूट्स, सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल जो भी आपके पास खाने हैं, बीन्स हैं, दालें हैं, आप सब आराम से इनको रेकमेंड कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्लैंड डाइट इसलिए रेकमेंड की जाती है, ब्लैंड का मतलब है बिल्कुल बगैर मिर्चों के और बगैर मतलब कम ऑयल में, विदाउट स्पाइसी फूड। सो ब्लैंड खाने का ये फायदा होता है कि उसमें डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है और पेशेंट को एकदम से एनर्जी की जो सोर्स चाहिए होती है वो क्विकली पेशेंट ले सकता है। इम्यून बूस्टिंग फूड्स के अंदर जाहिर है, मैंने जैसे भी इससे पहले भी जिक्र किया कि कलरफुल सब्जियां, दालों का इस्तेमाल, नेचुरल खानों को यूज करें डाइट के अंदर। मल्टीविटामिन और पिल्स दे देना और खाने में रिस्ट्रिक्शंस दे देना इज नॉट अ गुड आइडिया।
सो बेहतर है कि हाइड्रेशन अच्छी हो, सारे डाइट की सोर्सेस में डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स डाले हैं, फिश चिकन प्रोटीन का सोर्स है, नट्स एंड बीन्स लिए जा सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल में खाना बना हुआ रेकमेंड कीजिए पेशेंट को कि इन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हिडनली मौजूद हैं जो कि कुव्वत मुदाफ़त को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। कमिंग टू सम ऑफ टू ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टडीज आई वुड लाइक टू शेयर कि कुछ हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ों में कर्क्यूमिन का एक ये मैं स्टडी शेयर कर रही हूँ। कर्क्यूमिन एंड विटामिन डी का कॉम्बिनेशन पेशेंट्स को दिया गया तो उसमें एस टाइफी का जो ग्रोथ थी वो सिग्निफिकेंटली कम देखी गई। सो बेहतर है कि जो इस स्टडी के अंदर कर्क्यूमिन इज बेसिकली अ केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन हल्दी, टर्मरिक हम जिसे कहते हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया था एस्टाइफी इन इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड। सो अल्टीमेटली अगर जिस तरह से पेशेंट आपके पास आ रहा है तो यू कैन जस्ट, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट वैसे ही है, सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरली एडिंग दिस टर्मरिक and vitamin D as per the required dose of individual patient to you जरूर recommend कीजिए because it has a very significant role in decreasing the amount of bacterial colonies of S type B. Again, एक study conduct की गई थी by a team of researchers of the University of Health Sciences in Lahore, discovered the therapeutic role of honey and suggested it as a drug supplement for thyroid, including the treatment of antibiotics. हम natural antibacterial properties वाली क्वेश्चन कहाँ पे medication लिखे में हुए? भी add on कर सकते हैं जिसमें honey is on top. So honey is can be just supplemented in the water, खाने के अंदर add on करके एक limited amount में जरूर patient को recommend कीजिए as it has natural medicinal and antibacterial properties as well. So the preventive measures to be followed, ideally personal hygiene बहुत ज़रूरी है, खाने को thoroughly पकाना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम बारबेक्यू ग्रिल फूड को प्रेफर करते हैं जिसकी वजह से अंदर जो मीट है या गोश्त है वो अंडर कुक रह जाता है या पूरी कम्प्लीटली कुक नहीं होता जिसकी वजह से मजीद इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है। तो एक तो ये है कि कुक फूड thoroughly with appropriate temperature and then avoid foods on street vendors. मैं शुरू में भी कह चुकी हूँ कि स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब है टेक अवे या जो घर पे ऑर्डर हो रहे हैं आजकल खाने। और ड्यूरिंग दिस डिजास्टरस रेन इन सिंध एंड कराची एरिया यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुरा हाल था और सारे रेस्टोरेंट की बिजली भी काफ़ी टाइम तक नहीं रही, लेकिन हम वहीं से खाने मंगवा के खा रहे हैं। सो मेक श्योर कि वहाँ पे यू डोंट नो किस टेम्परेचर पे गोश्त को रखा गया और लाइट जाने के बाद वहाँ के फ्रीजर्स का क्या हाल था। दे कैन बी अ बिग कैरियर ऑफ एस टाइप बी अगर आप स्ट्रीट वेंडर से बहुत ज़्यादा खाना मंगवा के कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। Again, then other than that, avoiding eating raw and unpeeled veggies and fruits. Unpeeled veggies and fruits का मकसद इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सब्जियों और फ्रूट्स के ऊपर कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं या उसको आपने सीवेज के वाटर से वॉश किया हुआ था, यू डोंट नो घर में किस टाइप का पानी आ रहा है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन द पर्सन कि आपने क्लीन हाइजीनिकली वॉश सब्जियों और फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, अनपील्ड जो है बगैर छिलके की सब्जियों और फ्रूट को कुछ दिन तक इस्तेमाल नहीं करना। बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर सबसे बेस्ट आइडिया तो ये होता है कि आप घर में ही पानी उबाल के इस्तेमाल करें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 to 20 सेकंड्स तक पानी को उबालें और उसको आप फॉर द ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करें। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। Wash hands thoroughly, like everyone told you before cooking, having food, and even using the toilets. It is mandatory to wash hands thoroughly. Avoid raw milk and products made from raw milk. So, pasteurize your boiled milk use करना is an ideally better idea. Simply just boil the milk and it's better. और else जिनके घरों में कुछ अगर packaged milk आ रहा है तो उस पे pasteurized milk लिखा होना ज़रूरी है। Or else the best idea to advise your patient is to boil the milk and consume it as after boiling it. Iced water को use करना ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने घर का ही बना हुआ आपका सारा जो बॉइल्ड वाटर है उसी की आपने आइस बनाई और घर में ही यूज़ करें। बाहर से कोई ड्रिंक्स शेक्स या ऐसी चीज़ें मत मंगवाइए जिसके अंदर यू डोंट नो द सेफ वाटर इज़ बीइंग यूज्ड और नॉट। एंड देन ऑप्ट फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। 2-3 घंटे पे शॉर्ट मील्स पे रहना इज द बेस्ट आइडिया ताकि पेशेंट को कैलोरी प्रोटीन बूस्टर मिलता रहे, कार्बोहाइड्रेट की अच्छी सोर्स जाए और पूरे दिन की उनकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो उनकी डिजीज की इलनेस को इम्प्रूव करने में बहुत मेजर रोल प्ले करे। Thank you very much for the listening. If you have any questions, I would be happy to take up. A wonderful presentation.
And madam, a number of doctors submit their questions on chat. Please, I would like to like you to respond accordingly. Sure. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Me, Dr. Abdul Qadir Kori from Asian Institute of Medical Science, Hyderabad, Sindh. जी My question is from Dr. Noshin Nisar. जी। What is the role of the typhoid dot investigation nowadays? Sorry, is this question is from me or from Dr. Nausheen? Dr. Noshin. जी, so Dr. Noshin, can you listen to me here? Dr. Noshin, please switch on your mic. can you hear my voice? Yes, madam. Yes, madam. Are you listening my question? मुझे हुआ है मगर मुझे आवाज नहीं आ रही। आ रही डॉक्टर तो मैं ये बता रही थी कि जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो अब आउटडेटेड हो गए हैं और उनको अभी रिकमेंड नहीं किया जा रहा और ये दिस हैज बीन फ्रॉम द WHO एज वेल एंड हम लोग भी इसी को इंडोर्स करते हैं फ्रॉम द MMIDSC. Yes, so I am also with your comments, but now it is frequently right now nowadays at typhoid dot. So what was the role of you about this issue in public awareness? मैं दे देती हूँ जवाब। देखें, सोसाइटी का रोल ये होता है टू इंक्रीज अवेयरनेस। हम जितने भी सेशंस करते हैं, वी मेक इट अ पॉइंट टू एम्फेसाइज दैट serological tests have no role in diagnosis of typhoid, especially now when we have XDR salmonella where susceptibility testing is absolutely essential. तो ये चीज़ें हम अपनी presentations में भी करते हैं and this is part of our guidelines. Guidelines में कई जगह मेंशन किया हुआ है नॉट टू यूज टाइफिडॉट। इसके अलावा जितने भी अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से अक्रेडिटेड 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, आगा खान हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल और शौकत खानम। तीनों इंस्टीट्यूशंस ने टाइफिडॉट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो अच्छे अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस ये टेस्ट ऑफर ही नहीं कर रहे। सो हम ये मैसेज फैलाते रहेंगे एंड दिस इज व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। हम लीगली नहीं ब्लॉक कर सकते। एज अ सोसाइटी वी कैन जस्ट डिसेमिनेट एंड क्रिएट अवेयरनेस। Anyone else? Dr. Wasim, Indus Medical College Hospital, Tanwakhan. I want to ask questions. First of all, very beautiful and elaborative and informative lectures from all the two speakers. I want to know about the vaccine. The vaccine is the available vaccine is also effective against XDR and MDR cases of typhoid. Okay, so the vaccine is effective against all kinds of Salmonella typhi, irrespective of their susceptibility pattern. क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को टारगेट नहीं कर रही, वो इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है इंडिविजुअल में, ताकि ऑर्गेनिज्म जब भी जिस्म में आएगा वो इन्फेक्शन एस्टेब्लिश ना कर सके और उसका ससेप्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रोटेक्टिव रोल उसका जो है वो तमाम सैल्मोनेला टाइफी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है। दूसरे और भी बहुत से सवाल आए हुए हैं कि किस किस एज ग्रुप में इफेक्टिव है। तो 6 months ऑनवर्ड्स, कोई एज लिमिट नहीं है, सारे एज ग्रुप्स में वैक्सीन इफेक्टिव है। इम्यूनिटी जो है उसको लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं बिकॉज इट लास्ट अप टू 3 years। पिछली वाली जो वैक्सीन थी वो 1 साल में उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती थी और फ्रीक्वेंट बूस्टर्स चाहिए होते थे, लेकिन ये क्योंकि कॉन्जुगेट की गई है एक प्रोटीन के साथ, तो वो इसकी इम्यूनिटी जो 3 साल तक रहती है। 3 साल का अरसा जो है इट इज सफिशिएंट
for the country to improve its sanitation situation. ठीक है, आप अपने पानी और सैनिटेशन पे काम करना शुरू करें और साथ में वैक्सीन लगा लें. बाय द टाइम इम्यूनिटी वेन होगी उस वक्त तक ये उम्मीद की जा सकती है कि पानी की सिचुएशन बेहतर हो चुकी होगी, तो इन्फेक्शन का रिस्क वैसे ही कम हो जाएगा. After every 3 years we will be do the vaccine. फिलहाल ये रिकमेंडेशन नहीं है इस वक्त. तो सिर्फ ये पता है कि 3 साल तक उसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुई है. पिछले साल काफी एक्सटेंसिव 2 साल से इंट्रोड्यूस हुई हुई है. नहीं आवाज आ रही है मेरी? यस मैडम, आवाज आ रही है आपकी जी. तो वो एवरी 3 इयर्स वाली रिकमेंडेशन अभी फर्म नहीं आई है. वो जब आएगी रिकमेंडेशन तो बता देंगे, क्योंकि अभी पहले राउंड्स चल रहे हैं वैक्सीनेशन के. Nowadays, a major complaint from patient side that when we do the culture of the patient, still wait the 3 to 72 hours. Patient can't wait without only the simple Panadol. How we can the awareness with the patient? अच्छा, प्रिंसिपल जो होता है ट्रीटमेंट का जब आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं वो ये होता है कि अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक. कल्चर का इंतजार नहीं किया जाता एंटीबायोटिक शुरू करने के लिए. एंटीबायोटिक अलबत्ता नहीं इमीडिएटली नहीं देनी चाहिए. कल्चर्स पहले ड्रॉ कर लेने चाहिए. ब्लड कल्चर ड्रॉ करने के बाद एम्पेरिकली एंटीबायोटिक शुरू की जाती है. और एम्पेरिक एंटीबायोटिक के चॉइसेस आपको डीएसपी की गाइडलाइन में मिलती है. कंडीशन इज लाइकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस. आप एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं. यू डोंट वेट फॉर कल्चर टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक. Thank you very much, madam. Thank you very much. Anyone else who want to ask questions? Miss Moti Khan and Dr. Bushra Jamil and Dr. Noshi Nasir. Question. I have a question. Yes, madam. डॉक्टर बुशरा, ये मुझे पता करना था कि जैसे लाइक आपने कहा कि आप एम्पेरिकली शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी 5 डेज का फीवर होने के बाद ही कल्चर किया जाए या उससे पहले भी किया जा सकता है? क्योंकि आई एम अ पैथोलॉजिस्ट और मैंने तो टाइफाइड और जो विडॉल है वो बिल्कुल बंद कर दिया है. सो मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बारे में आप प्लीज क्लियर दे दीजिए. देखिए, उसूल ये होता है कि एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले कल्चर ले लिया जाए. और टाइफाइड के अंदर ये ऑब्जर्वेशन है, बल्कि नोन फैक्ट है कि 5 से 7 दिन लग ही जाते हैं बुखार उतरने में. ठीक है, डिस्पाइट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक. तो पेशेंट की कंडीशन देखते हुए अगर भूख लगना शुरू हो गई और ओवरऑल सिम्टम्स बेहतर हो गए तो रिपीट ब्लड कल्चर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए एंड यू कंटिन्यू विद द सेम एंटीबायोटिक. लेकिन अगर लग रहा है कि ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है तो ऑन एंटीबायोटिक ब्लड कल्चर्स लिए जा सकते हैं एंड वी डू इट ऑल द टाइम. लेकिन उसमें सॉरी, आपने ये कहा था कि एफेब्राइल हो ड्यूरिंग द पीरियड जब वो ले रहा है, वो एफेब्राइल हो एंटीबायोटिक के साथ तब कल्चर ले. नहीं, क्या ये जरूरी है कि वो एफेब्राइल ही हो? तो नहीं. मैंने वो पॉइंट जो लिखा था वो इसलिए लिखा था कि जनरली लोगों की ये सोच होती है कि जिस वक्त बुखार हुआ है उसी वक्त ब्लड कल्चर ड्रॉ करना है. ठीक है, कि जब पेशेंट फेब्राइल होगा इंतजार करते हैं बाज दफा कि जी बुखार चढ़ेगा तो ब्लड कल्चर के लिए सैंपल ड्रॉ करेंगे. सो मैंने प्री टेस्ट में जो क्वेश्चन डाला था वो ये था कि एंटेरिक फीवर में अगर मरीज को बुखार नहीं भी है और दिन के कुछ हिस्से में बुखार हो रहा है तो कैन यू ड्रॉ ब्लड कल्चर व्हेन द पेशेंट इज एफेब्राइल? सो द आंसर वुड बी यस, क्योंकि बैक्टीरिया कंटिन्यूअस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फीवर. उसका ये मतलब नहीं है कि आप एफेब्राइल पीरियड का इंतजार करेंगे. थैंक यू. Anyone else who want to ask questions regarding typhoid and diets? चैट में से क्वेश्चंस ले लें, क्योंकि चैट में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं which need to be addressed. Doctor, a number of questions on chat has been posted. So quickly लेते जाएं one after the other, क्योंकि जवाब छोटे होंगे. बहुत कम में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. बिल्कुल. एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि what to extent have cases of typhoid decline in children after vaccination campaign in Sindh?
अच्छा, मैं बता देती हूँ। इसमें टाइफॉइड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी जो है ये अभी 2 साल से ही शुरू हुई है, एंड इट इज़ टू अर्ली टू से कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बिकॉज ससेप्टेबल एज ग्रुप टारगेट किया गया है और वैक्सीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टाइफॉइड वैक्सीन एवर। सो इसका इम्पैक्ट जो है अगले कुछ सालों में सही सामने आएगा, लेकिन एंटिसिपेशन ये है कि इससे ज़रूर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा इन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइफॉइड केसेस इन चिल्ड्रन। थैंक यू। मिस मोती खान के लिए क्वेश्चंस हैं कि इज इट ट्रू दैट फूड कंटेनिंग फाइबर्स कैन एग्रावेट टाइफॉइड फीवर? नहीं, ऐसे कोई चीज नहीं है कि कोई स्पेसिफिक खाने की वजह से टाइफॉइड का फीवर एग्रीवेट हो जाए। सिंपल आपका जो मैंने हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की बात की थी उसी को फॉलो करें। और दूसरी बात है कि फाइबर जो मैंने डाइटरी सोर्सेज कुछ मेंशन भी की थी, जब पेशेंट को डायरिया हो रहा होता है तो आप फाइबर की डाइटरी सोर्सेज में रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, खाने में वो चीजें नहीं देंगे जिसमें फाइबर ज्यादा है। लाइक आई मेंशन, दालें हैं, बीन्स हैं, रोटी है, छिलके वाले फ्रूट्स हैं, कच्ची सब्जियां सैलेड की फॉर्म में है, दूध है, इसका इस्तेमाल कुछ टाइम तक ना करें जब तक डायरिया की फ्रीक्वेंसी रह रही है। वंस द डायरिया गेट्स रिजॉल्व्ड, द पेशेंट कैन ईट एवरीथिंग दे वांट टू हैव। और आपको अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर से इन टच रहना पड़ेगा टू गेट एन अपडेट ऑन हाउ द व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया गोइंग ऑन। अदर देन दैट, इसमें पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ बॉइल्ड वाटर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और डायरिया के अंदर डाइट में थोड़ा सा हम रेजिड्यू या फाइबर कम करते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ, तो काइंडली वही फॉलो कीजिएगा। थैंक यू मैडम। मैडम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्सेप्ट प्रोबायोटिक रिकमेंडेड फॉर टाइफॉइड पेशेंट्स? देखिए, एक्सेप्ट प्रोबायोटिक, देखें इसमें ये है कि आपके पास दही और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोबायोटिक्स बड़े अच्छे होते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आएगा विद प्रोलॉन्ग डायरिया हैविंग टाइफॉइड, सो आई सिंपली रेकमेंड कि वो दही और लस्सी का इस्तेमाल करे। दूध में जो लैक्टोज है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि डायरिया को बढ़ा सकता है। तो जब डायरिया हो रहा हो तो उसमें दही और लस्सी या दूध से बनी हुई चीज, दही से बनी हुई चीजों के या दही का इस्तेमाल करें। कुछ टाइम तक जब डायरिया सबसाइड हो जाए फिर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक्स की फॉर्म में और सिंपल एज यू लाइक टू हैव। थैंक यू मैडम। डॉक्टर बुशरा आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव इज कैप विवोटिव वैक्सीन अगेंस्ट टाइफॉइड फीवर? डॉक्टर बुशरा एंड डॉक्टर नौशीन। एक डॉक्टर डैनियल आस्क, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है जानना। अगर कॉन्जुगेट वैक्सीन है, अच्छा, ओरल वैक्सीन जो है इफेक्टिव है लेकिन लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं होती उसकी, सो उसको रिपीट करना होता है। सो इट डजंट लास्ट लॉन्गर देन अ ईयर इम्यूनिटी इसकी। ओरल वैक्सीन हर दफा लेनी पड़ती है हर साल, या उनके लिए ट्रैवलर्स के लिए रेकमेंडेड होती है जो आ रहे हैं, सो दे हैव टू टेक इट बिफोर कमिंग हियर, कमिंग टू द एंडेमिक एरिया। थैंक यू मैडम। Another question मैडम, कि बेस्ट एम्पेरिक थेरेपी टू बी गिवन until blood culture results come positive or negative? बेस्ट एम्पेरिक थेरेपी वो डिपेंड करेगा कि आउट पेशेंट में है मरीज या इन पेशेंट है। सो ये वाली स्टेटमेंट को ना जनरलाइज नहीं कर सकते, मरीज की सिचुएशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हॉस्पिटलाइजेशन वी यूज कार्बापेनेम क्योंकि उसके अंदर मजीद इंतजार करने की गुंजाइश नहीं होती। स्टेबल पेशेंट हु कैन टॉलरेट ओरल एंटीबायोटिक्स, फिलहाल एजिथ्रोमाइसिन है क्योंकि रेजिस्टेंस टू अदर एंटीबायोटिक्स इज हाई। लेकिन अगर सेफ्ट्राइक्सोन ससेप्टेबल या सेफिक्सिम ससेप्टेबल स्ट्रेन आ जाता है या इवन सिप्रोफ्लॉक्सासिन ससेप्टेबल स्ट्रेन आ जाता है, तो आप नैरो डाउन करते हैं, यू स्टेप डाउन योर ट्रीटमेंट। ये नहीं होता कि आपने एजिथ्रो या कार्बापेनेम से शुरू किया और उसी पे डटे रहे, जबकि स्ट्रेन सिंपलर एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस के साथ मरीज है और एडमिटेड है, उसके लिए इस सिचुएशन में जबकि क्लिनिकल पिक्चर इज कंपैटिबल विद टाइफॉइड, वन ऑफ द कार्बापेनेम्स वुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस एडमिटेड पेशेंट्स के लिए। Excuse me, I have thank you a question. जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कोविड में एरिथ्रोमाइसिन बहुत यूज की गई है, तो क्या अभी आपके ये रिसर्च अपडेटेड है कि कहीं इसमें तो रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो रहा? क्योंकि आई हैव हर्ड कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन से काफी टाइम से थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है,
ठीक है, लेकिन कोविड में जिस तरह एजिथ्रोमाइसिन यूज हुई है, अगेन इट इज टू अर्ली टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ओवर यूज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन फॉर कोविड। ये आएगा, इसका असर कुछ सालों के बाद नजर आना शुरू होगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा हमें, क्योंकि ये जो ससेप्टेबिलिटी डेटा आता है ये काफी महीनों का अक्यूमुलेटेड डेटा होता है। So, अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन हुई तो फिर हम सेशन एक कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त कोई ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि सडन कोई इंक्रीज हुआ हो इन रेजिस्टेंस टू एजिथ्रोमाइसिन। हमारे जो MMID SPS में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर आल्सो मेंबर्स, सो वो नोटिफाई करा देते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल फिनोमेना हो रहा हो जिसकी इम्प्लीकेशंस हो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू। मैडम एक और क्वेश्चन है डॉक्टर का, वो कह रही हैं कि मेनुपेनम और एजिथ्रोमाइसिन इनिशियली सिक पेशेंट्स में कंबाइन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? कॉम्बिनेशन दी जा सकती है, ये क्लिनिशियन की जजमेंट पे होगा। बाज़ दफा पेशेंट्स आर वेरी सिक, यू हैव वेरी लिटिल टाइम, सो वो कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सोच समझ होनी चाहिए, उसको डेली रिव्यू करना चाहिए कि आपको जरूरत है भी कॉम्बिनेशन। ओके, मैं दैट शोज के कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है एक साथ दोनों इंजेक्शन स्टार्ट करने में। जी जी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कोई नहीं है। थैंक यू मैडम। Anyone else who want to ask a question from Dr. Bushra, Dr. Noshin and Miss Moti Khan regarding typhoid and diet? Thank you, madam. And to end this wonderful sessions, I would like to thanks on behalf of SAMI to Dr. Bushra Jamil, to Dr. Noshin Nasir and Ms. Moti Khan for giving your valuable time and sharing their experience on this topic. And thank you very much for everyone who attended this scientific sessions. Thank you, madam. Thank you very much. Okay, Shukriya. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.